थैंक यू। भाई ये साइड में आ जाओ, ये साइड में आ जाओ प्लीज, ये साइड में आ जाओ, राइट साइड भाई, ये साइड में, राइट में आ जाओ सब लोग, राइट में आ जाओ। मैम सर। सर वी वॉच योर रैप अप पार्टी। दादा हटो। अरे सवाल पहले करण जी से है। सर आपने कहा था गुड न्यूज की जो स्पेलिंग है उसके पीछे कहानी है, दैट डबल डब्ल्यू, सो प्लीज शेयर दैट। कहानी के पीछे आप कहाँ के पीछे? सर, कहाँ यहाँ। पीछे? हाँ अच्छा, आप यहाँ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, क्या कहा था आपने? सर आपने कहा था कि गुड न्यूज की जो स्पेलिंग है उसके पीछे एक कहानी है, दैट डबल डब्ल्यू, सो प्लीज उसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत साल पहले मैंने ये एक जो इनहेरेंट सुपरस्टिशन था और हमेशा रहता भी है हम लोगों की दुनिया में, क्रिएटिव दुनिया में, तो मेरा एक सुपरस्टिशन मेरा भी था के अल्फाबेट से। फिर कुछ ऐसे रिलीज हुए फिल्म के साथ जिसमें करीना कपूर भी थी एक ऐसी फिल्म में, जो ज़्यादा नहीं चली। तो मुझे लगा कि ये के अक्षर शायद ये मैं बस ये ऐसा सुपरस्टिशन के साथ मैं बैठ चुका हूँ, एंड इट्स जस्ट स्टेइंग विद मी फॉर नो रीजन, तो आई गिव अप ऑन दैट सुपरस्टिशन। Many years after that, I encountered Raj Mehta, who's paranoid about everything. And it was, no, you're blaming Akshay? No. It's you, huh? Okay. All right. So he, along with Azim Dayani, who's the curator of music in this film, they both came very paranoid and asked me if they could call the film A Good News. So I just said, A Good News is not incorrect English. You don't have a good news, it's good news. So they said, then we'll have to change the spelling. And I realized it's his first outing. Azim is a very passionate young man. And I felt that kal ko kuch galat ho gaya, they'll blame it on me and the spelling. So I said, please change it. And they decided to call it NEWWZ. Personally, it's rather ridiculous, but it's actually, everyone has learned to accept it and really envelop it. So, well done, Raj, thank you. And in fact, we're going to make sure that you change the spelling of all our films. And if this film does well, then you'll be the spell man at Dharma. Okay, अक्षय बाजी, करीना and Kiara, आपसे सवाल है कि this is the, if I'm not wrong, please correct me, this is your first attempt to have a slice of life comedy with that comedy of errors वाला script, मतलब ये जो film है. So what was your first reaction when you got the script? मतलब Diljit Paji has done Mukhtar Chadda and other films which has a slice of life comedy kind of stuff, but what was your first reaction? इसीलिए बोलता हूँ, वो बोल दे किसको पूछ रहा है? आप तीनों से? तीनों से? हाँ जी. ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई स्टिल रिमेम्बर करण, ये मुझे एक कहानी सुनाने लाए थे, तो ये मेरे घर पे आए हुए थे, इन्होंने कहानी सुनाई और करीबन 1.5-पौने 2 घंटे की नरेशन दी और मैंने कहा बहुत अच्छी कहानी है। फिर मैं बोला और क्या बना रहा है? फिर कहता है एक छोटी फिल्म बना रहा हूँ गुड न्यूज़ करके। मैं बोला उसकी कहानी क्या है? फिर उन्होंने करीबन 2 मिनट सुनाई वो कहानी। मैं बोला वो 1.5 घंटे वाली भूल जाते हैं, ये बनाते हैं। तो फिर उसके बाद ये मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ वाली कहानी जो है मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत मज़ा आया इस कहानी के अंदर। और मैं सच बताऊं तो ये ऐसा हादसा कहीं हुआ भी है जो आपने देखा ट्रेलर अभी, ये कहीं हुआ भी है और उसको लेके इसको पिरोया गया है। करीना जी and Kiara, your inputs? When actually Raj narrated the film, I personally thought I was perfect for the part. Yeah, that's the truth. I thought that I really wanted to, do the film. It was funny. It was, I couldn't stop laughing. And
yeah, I said that why not? I mean, of course, it's a production house that I trust beyond. And yeah, I was like, why not? It's a whole package is great. Actually, Akshay was not on board at that time. I was the first one that came on board. I didn't know who the rest of the cast was. But I said, yeah, I want to trust Raj and let's just do it. And I think it's quite funny. I was rolling on the floor laughing when he narrated it to me, and I was the last one on board. So I knew all three of them were on board, and I was like, this is a huge opportunity for me to work with all of them. This is my first film with Dharma, so that itself was a big moment for me. And yeah, I mean, for me, I'm like Karan sir said, I'm the junior most here, and there's just so much to learn. It's a character that Raj has given me, which he really worked with me on this one, and I really hope you guys like it. I love the way I become sir only on this stage. Drop it, babe. Diljit actually was very exciting because I remember speaking to him, and I think when he heard that, you know, he heard the ensemble, I think immediately kind of it excited him, and I think he kind of like was agreeable to be on the film as soon as I think he heard the cast, and then of course he heard the narration and Raj narrated. क्या लगा आपको दिलजीत? मुझे लगा सिर्फ ऐसे सुनाने के लिए बुलाया है मुझे शायद लेंगे नहीं फिल्म में तो मैं सुनने के लिए चला गया था क्योंकि एक बार मैं पहले सुनने आया था एक फिल्म तो उसमें मैं नहीं था बट अगर वो फिल्म करते तो शायद ये खुशी खुशी ये नहीं कह पाते वो फिल्म अगर आप करते तो कुछ हाँ बताएंगे नहीं कौन सी फिल्म थी वो लेकिन हाँ थैंक यू सर नमस्कार मैं रेखा खान नवभारत टाइम से सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगी बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और बहुत मज़ा आया देख के 2-3 बार भी हम देख सकते हैं ये सवाल मेरा आप सभी लोगों से है हम हमेशा जब भी गुड न्यूज़ की बात करते हैं तो यही होता है कि घर में कुछ कोई बेबी आने वाला है या इस तरह की बात होती है कि क्या यार कोई गुड न्यूज़ है लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इसके अलावा आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ की डेफिनेशन क्या होती है आजकल के दौर में बहुत स्ट्रेस है हम लोग कई बार ट्रैफिक में स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कई बार हमारे डे टू डे चीज़ें हैं तो आप सबके लिए इसके अलावा क्या डेफिनेशन हो सकती है गुड न्यूज़ की क्या करण आपके लिए क्या गुड न्यूज़ हो सकती है When his parcels of his shopping reach his door. ये मैं सभी से जानना चाहूंगी देखिए क्या है कि मुझे लगता है कि गुड न्यूज़ की जो कॉन्सेप्ट है ना मैं ज़्यादा एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं उस किस्म का इंसान हूँ कि कुछ अच्छा अगर मैंने सुन लिया तो मुझे लगता है कि 1-2 मिनट या 5 मिनट या 15 मिनट के बाद मैं कुछ बुरा सुन लूंगा तो वो गुड न्यूज़ का ज़्यादा ऑफ कोर्स अनलेस इट्स द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड जैसे मुझे अभी भी याद है व्हेन आई गॉट द इन्फॉर्मेशन ऑफ माय 2 बेबीज व्हाट दैट फेल्ट लेकिन गुड न्यूज़ का जो होता है ना गुड न्यूज़ के बाद हमेशा कोई ना कोई बैड न्यूज़ ही आ जाता है तो आयोलफीस की कभी खुशी कभी गम काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है हमारी जिंदगी में सो आई डोंट होल्ड ऑन टू दैट न्यूज़ विद दैट मच जॉय एवर मुझे लगता है कि हमेशा कि इसके बाद कुछ बुरा ही होने वाला है आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ सिनिक लाइक दैट लेकिन गुड न्यूज़ का मां बहुत सारे हो सकते हैं मुझे तो गुड न्यूज़ ये होता है जब एक एक्टर कम प्राइस पे फिल्म कर दे सबसे बड़ा न्यूज़ वो है और वो गुड न्यूज़ अक्षय ने मुझे आज तक नहीं दिया करीना आपके लिए क्या हो सकती है गुड न्यूज़ I can't beat that answer, so I don't think we should answer this question. और अक्षय आपके लिए मेरे लिए मैं तो बैड न्यूज़ में भी गुड न्यूज़ ढूंढता हूँ सो मैं एक बहुत ही पॉजिटिव किस्म का इंसान हूँ तो मुझे कुछ भी चीज़ आप दे दो मैं उसके अंदर एक गुड न्यूज़ निकाल के छोड़ूंगा एंड कियारा आपके लिए But really, nobody can beat this answer now. Right now, I think every time I sign a good film that I'm excited about, it's like, oh my Great. God, good news. दिलजीत आपके लिए फिलहाल तो ये फिल्म जी एंड करण एक सवाल मेरा आपसे एक और सवाल है कि इस फिल्म को बनाने के पीछे आपकी क्या सोच थी कि ये सही बात है कि सिनेमा जो है वो एंटरटेनमेंट को ही एक मतलब पहला तो उसका उद्देश्य एंटरटेनमेंट को पूरा करना ही होना चाहिए तो क्या इसके पीछे था इसके पीछे आपकी सोच क्या थी तो कि एक फील गुड वाली मूवी दें या और कुछ आप सोच रहे थे आई वॉज एक्चुअली मैं जैसे अक्षय ने कहा कि हम एक छोटी फिल्म बना रहे थे मैं हमेशा ऋषिकेश मुखर्जी साहब जो बनाते थे सोशल कॉमेडीज बनाते थे तो मेरी हमेशा ये चाह थी कि हम धर्मा प्रोडक्शंस में ऐसी एक फिल्म बनाए दैट विल बी अ सोशल कॉमेडी जो रेलेवेंट भी हो इमोशनल भी हो हंसाए भी रुलाए भी और एक एक फील गुड वाली फैक्टर हो फिल्म में आज तक एक्चुअली धर्मा ने उस किस्म की फिल्म नहीं बनाई जैसे ये है जैसे ब्रांडेड ऋषि मुखर्जी तो जब मैं अक्षय के घर गया तो मैं एक बड़ी स्क्रिप्ट वाली फिल्म लेके गया बिकॉज ही इज अ मेगा मूवी स्टार एंड आई जस्ट फील कि अक्षय में खासियत है he searches for content वो कभी स्केल नहीं देखते वो कभी डायरेक्टर and I feel that he's one actor who's always supported first time directors and I think that's very rare for a movie star and a mega movie star in India to do yeah
हमारा 16th है, अक्षय का 23rd डेब्यू डायरेक्टर है. So I think he's the only superstar in India, I would say, that has worked with so many debut directors. वो कभी नहीं, I think, पूछते कि फिल्म का डायरेक्टर कौन है. जो I've been to many actors, narrated many films. हमेशा ये सवाल उठता है कि डायरेक्टर कौन है, उसकी काबिलियत क्या है. I think अक्षय वाइब को सस करता है. तो राज से मुलाकात हुई, कहानी सुना, and within a day the film was locked and signed and ready to go. तो I feel कि मैं ये जब फिल्म बनाना चाहता था, तो मेरा जो ख्याल था कि I would actually make an intimate film. अक्षय ने उस फिल्म को स्केल दे दिया, and I would actually think that's an amazing thing for a superstar to do, to just look for content and not worry about its scale and its, its opulence. So I think that was my thought. Akshay sir, this is Faridoon on your right, sir. On your right. Hi, sir. So congratulations, the promo is outstanding, very, very funny, and I think you're having an amazing year, and I think this will be perfect icing on the cake as far as this year is concerned. The writer of the film is Jyoti Kapoor. She gave the idea of Badhai Ho, which was also had some sort of pregnancy associated with that. So she has a fetish for that, maybe. My question to you is, both the films, I think they are on the similar lines. And my question to you is that in your phenomenal career, sir, what has been the role of writers in shaping up your career? It's a very, very big role. It's a very, very big role. I think writers are the most important people. मैं अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगा डायरेक्टर से भी बड़े राइटर्स होते हैं मेरे हिसाब से. I think it's a tremendous, I think, and I also feel कि अभी cinema जो है digital की तरह writers का medium बन चुका है. And I think finally the fraternity is empowering writers. I think that's great because they're empowered, they're doing such strong work and creating such amazing content. Actually, अगर writer ना हो तो actors भी कोई फायदा नहीं है. चाहे कितने भी बड़े-बड़े actors ले लो आप, उनका कोई फायदा नहीं है. अगर writer सही नहीं बैठे, अगर सही कहानी नहीं आए, सही लिखाई ना हो, तो मेरे हिसाब से writers की बहुत बड़ी अहमियत है.